Okay, students, come to the point. In previous class, Coulomb's law have been completed. But see, I am given to you one message. Physical first one, second one. Scalars, vectors. Okay, see the basic. Physics is nothing but built by the physical quantities. In physics, physical quantities are to be involved, and you know, all physical quantities are to be classified within two groups: scalars, vectors, and the meaning of groups respectively known. Scalars means having only magnitudes. Vectors means magnitudes and directions both. So you see, if you are dealing scalar quantity, then your dealing should be as usual. Means nothing special, nothing different will be involved. Now vectors. But if you are dealing a vector, then direction is must. Without direction, see, vector will be wrong. That physical quantity will give you the wrong result. Explanation will be wrong. So in vector, I am again repeating, direction is must first. You see one thing more simple. I am going to add physics, wide syllabus. No doubt, difficult. Psychologically एक हवा है. But ये हमारी no doubt point of view होना चाहिए. ये हमारा, you see, we can say a lifestyle होना चाहिए. Being science stream, that we have to make it simple, small. फिजिक्स बहुत बड़ी है, फिजिक्स हवा है, कोई बात नहीं. हमने इसको जो है नो डाउट एनालाइज करके सिंप्लीफाई कर लिया, जनरलाइज कर लिया. एंड सीरीज वन, फिजिक्स में है क्या? फिजिक्स में दो फिजिकल क्वांटिटी है, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज है. और ये मुट्ठी कितनी है? दो है. बात खत्म. एक मुट्ठी में सारी स्केलर्स, दूसरी में सारी वेक्टर्स. तो ये देखिए, जो फिजिक्स बहुत लेंथी है, जो बहुत हवा है, तो नो डाउट ये हमारी मेंटेलिटी है, साइंस स्ट्रीम के हम, कि हमने इसको स्मॉल कर लिया, सिंपल कर लिया, सारी फिजिक्स को दो मुट्ठी में भर लिया. अब स्केलर होगी एज यूजुअल डील करेंगे, वेक्टर होगी डायरेक्शन यूज करके ही डील करेंगे. ओके, नाउ यू विल टेल मी फोर्स, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर वन, नॉट टू वेक्टर क्वांटिटी. बट सी हियर, इट इज रिटन इन एग्जांपल. ए वेक्टर, say here a position vector is to be represented by an arrow, and when we light it, above it an arrow is to be provided. But see here, in force no arrow is given. It means it is a vector quantity, but arrow is not given. It means whatsoever is done, that is only in terms of magnitude. Now you see, if I am having it completely is a vector, then it is must to introduce direction in it. Direction means, then you see, we will have its vector representation, and nothing. The next topic is the same, that is vector representation of electrostatic force. So come to the same one. Vector representation of electrostatic force. Representation of this vector quantity in terms of magnitude already we have, and now you please see, we will introduce in it direction, then it becomes vector. So the same vector representation of electrostatic force I am going to discuss. कैसे? सिंपल. हमारी नीड क्या है? हमारी नीड है डायरेक्शन. अब डायरेक्शन हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? नो डाउट, इसके लिए हम मैथमेटिकल अप्रोच यूज करेंगे. सिंपल वन, डायरेक्शन हमें इंट्रोड्यूस करनी है, तो नो डाउट डायरेक्शन जो है मैथमेटिकल अप्रोच यूज करके इजीली फोर्स के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगी. खैर, फिर वही क्वेश्चन, अब इंट्रोड्यूस कैसे? डायरेक्शन आई नीड से मैथमेटिकल अप्रोच. ओके, बट फिर क्वेश्चन है कैसे हुई? तो उसके लिए सिंपली, अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकली चल रहा है, तो इट इज मस्ट कि उसे हम मैथमेटिकली एनालाइज करें, और आपको 101% मिल जाएगा. ठीक है, कि डायरेक्शन देखिए ऐसे हम मैथमेटिकली यूज करेंगे.
चलिए तो मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं. सी दिस वन. इन फोर्स दिस इज कांस्टेंट, दिस वन कंप्लीटली. Q1 Q2 स्केलर क्वांटिटी, कांस्टेंट, नो डायरेक्शन. स्केलर क्वांटिटी, नो डायरेक्शन. बचा कौन? डिस्टेंस, पोजीशन. पोजीशन वेक्टर, इट मींस डायरेक्शन हमें कहां से मिलेगी? डायरेक्शन हमें मिलेगी पोजीशन वेक्टर. यानी कि मैथमेटिकली ये पता चल गया कि हमें डायरेक्शन किससे मिलेगी? पोजीशन वेक्टर से. बाय पोजीशन एज, बाय पोजीशन एज पोजीशन वेक्टर. चलिए हम अगेन सिंपलीफाइंग द सेम थिंग. हमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड हमारे पास है डायरेक्शन को इन्वर्ट करना है. कैसे? उसके लिए मैथमेटिकल अप्रोच हम यूज कर रहे हैं. और उसको मैंने हमेशा के लिए बता दिया कि कोई भी एक्सप्लेनेशन अगर मैथमेटिकली चल रहा है, कोई भी मॉडिफिकेशन मैथमेटिकली करना है, तो उसे मैथमेटिकली एनालाइज करो. 100% आपको महसूस हो जाएगा कि डायरेक्शन मैथमेटिकली ऐसे यूज होगी. ओके, कर लिया आपने. कांस्टेंट, कोई डायरेक्शन नहीं. स्केलर, कोई डायरेक्शन नहीं. बचा कौन? डिस्टेंस, पोजीशन. नो डाउट दैट कैन बी एज पोजीशन वेक्टर. इसका मतलब, इसका सिग्निफिकेंस ये कहता है कि डायरेक्शन बाय पोजीशन वेक्टर हमारे पास आएगी. फिर क्वेश्चन है कैसे? नो डाउट फॉर दैट सिंपली वेक्टर अलजेब्रा विल बी यूज्ड. अब वेक्टर अलजेब्रा कैसे यूज करेंगे इसके लिए? सिंपल, दैट इज इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर of position. Its notation is basically known to you. That is nothing. That is r cap. फिर सवाल है कि in terms of unit vector of position direction introduce कैसे होगी? Simple. And therefore, you see now this force becomes vector quantity. It means representation by an arrow. That is 1 by 4 by epsilon naught Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर कैप. से क्वेश्चन 1 क्लियर कि कैसे वेक्टर अलजेब्रा यानी यूनिट वेक्टर और पोजीशन को हम यूज करके डायरेक्शन को इस मैग्नीट्यूड के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे इट बिकम्स ए वेक्टर. ओके, ऐसे करेंगे, ऐसे. नाउ दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट इज रिटन विद द वेक्टर नोटेशन. मोरओवर where this r cap is not to you, this is nothing, vector r to its mode. I am giving here, you see in bracket, simplification of this magnitude. That is clear. One thing, it can be written like this, and see this is nothing but equal to square of this, then its magnitude. इसका मतलब ये हो गया, या यूनिट वेक्टर आपको याद आ गया कि यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या है. ओके, जिसकी वैल्यू 1 और कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो एक बात तो अंडरस्टूड है यहाँ पे कि देखिए इससे डायरेक्शन आपने, ठीक है जी, नो डाउट इन्वॉल्व किया है. तो इन्वॉल्व, अब वो वाली बात हमने कहा था ऑलरेडी आपको कि हम किसी भी थ्योरी को, रिलेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, यानी जो बेसिक होगा वो रिमेन्स द सेम है, चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते. इसका मतलब ये है कि इसको इन्वॉल्व करने से क्या चेंज हुआ हमारा एक्सप्रेशन? बेसिकली नो, क्योंकि यूनिट वेक्टर हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड 1 से कोई फर्क नहीं पड़ा, और जिसके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन है, यानी कि आपको डायरेक्शन मिल गई. मोरओवर दिस इज नथिंग, यूनिट वेक्टर इज नॉन टू यू मैथमेटिकली कि वेक्टर को इटसेल्फ अगर मोड से डिवाइड करें तो देन इट बिकम्स ए यूनिट वेक्टर. अच्छा, नाउ सी मैग्नीट्यूड इज टू बी सिंप्लीफाइड इन दैट मैनर. Magnitude can be written like this. If you are providing arrow, then bar, and no arrow, no bar. And see, mathematically, do its square, then take square root, you will get the same magnitude. And the magnitude of a vector is nothing but that is the square root of the square of that vector. And see here, there is one thing I am repeating. If doing any more multiple of a vector square, vector q, etc., by which you see it becomes in terms of magnitude. Then put this unit vector there, and that is f is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square
into unit vector r, and that is r divided by r. Okay, now we can simplify it. That's nothing. This f, that is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2, this divided by r square, that r can be written only r, or you see that r square can be written as r square mod r mod, and in numerator as it is vector r. Finally, this is nothing 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r cube mod vector r. Where I am repeating again, this r cube vector mod can be written as r cube, and that's final. So with the same, I would like to say vector representation of electrostatic force is to be completed. अब एक क्वेश्चन और उठाया यहाँ पे कि ये जो भी एक्सप्लेनेशन आपने किया इसमें कितने चार्जेस लिए, या अभी तक फोर्स के एक्सप्लेनेशन में 2 चार्जेस आर टू बी यूज्ड, और अगर मोर देन 2 charges are there, then what will be about the force? No doubt. Next, the same topic. In the next topic, we are going to discuss the electrostatic force due to more as well as many charges. Okay. Electrostatic force due to many charges. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू मैनी चार्जेस। अब पहले मैं इस टॉपिक के मीनिंग को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, मैनी चार्जेस से मतलब किस तरह की, या फोर्स को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये रहे आपके मैनी चार्जेस, ये रहे साहब, ये ज़्यादा मैनी चार्जेस, दिस वन Q1, दिस वन Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, and there is one here as unit positive test charge Q naught. Okay, now see, all these charges are acting force on the same, force on the same F1, F2, F3, arrow vector quantity, F4, F3, F5, F4, F6 and so on. इस तरह से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर मैनी चार्जेस फोर्स एक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब मैनी फोर्सेज आर हियर, इसका मतलब रिजल्टिंग फोर्स इज आवर नीड फॉर द टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब क्या होगा कि हमें रिजल्टिंग फोर्स एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, वेरी क्लियर कि इस तरह मैनी चार्जेस से मैनी फोर्सेज इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर ऐड कराया आपने। अब मैनी हैं तो नो डाउट रिजल्टिंग तो होगी। तो इस टॉपिक में हमारा मोटो रिजल्टिंग फोर्स को एक्सप्लेन करना है। बट एक बात बड़ी क्लियर कि अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई इन बिटवीन द चार्जेस फोर्स क्या है, बट बाय द वे दैट इज नेग्लिजिबल और नेग्लेक्टेड हियर फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेम टॉपिक एज पर करिकुलम। ओके, so it means I have made concentration upon the same one and see this resulting force. No doubt, or we can say for this resulting force we are in need of 2 basic factors. तो इसका मतलब क्या है? To explain it, we are in need of 2 basic as well as important factors. तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये basic factors हम complete कर लें। चलिए जी, यानी I would like to say here कि ये जो resulting force वाली बात है हमारी, depends upon 2 factors. Okay, repeating the same thing. इस क्वेश्चन पे हम खड़े हैं
ये हमारी नीड है, बट सी ये डिपेंड करता है टू बेसिक एज वेल एज इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। तो ये 2 फैक्टर्स क्या है? इट इज मस्ट फर्स्ट टू क्लियर द सेम। चलिए जी, तो इन 2 फैक्टर्स को करते हैं वन बाय वन। ओके, फर्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। देखिए 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक, एक मैक्रोस्कोपिक। पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा होता है जी हमारा, से दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दैट वन इज मैक्रोस्कोपिक point of view. Done. Alright, see. Number 1, macroscopic point of view. देखिए, चार्जेस स्मॉल वन है भाई, माइक्रोस्कोपिक में आते हैं। एंड चार्जेस की प्रॉपर्टीज आपका क्या है? चार्जेस की फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट वन प्रॉपर्टी वो क्या कहती है कि अरेंजमेंट कैसा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, क्वांटाइज्ड। इसका मतलब माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, अरेंजमेंट शुड बी क्वांटाइज्ड एंड दैट इज नथिंग, दैट इज एक्चुअलिटी। लेकिन अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू बात लें, हम मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, क्योंकि अब मैनी है, अब बड़ी बात है, तो ऐसी पोजीशन में यू सी डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी विल बी यूनिफॉर्म। अब बस ये क्वेश्चन बचा कि ये जो यूनिफॉर्म वन है, इस यूनिफॉर्म वन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कैसे लेंगे? सिंपल, दैट इज नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, एंड चार्ज डेंसिटी on the basis of the arrangement of charges is to be classified within 3 types. Okay, 3 types respectively. Linear charge density. Second, areal charge density. Third, volume charge density. There is nothing, notation, lambda, and that is Q, dq, L, dl. If you can simplify, you will have this dq as lambda dl. See this first one. सवाल क्लियर, सीक्वेंस क्लियर कि क्योंकि हमारी नीड जो है मैक्रोस्कोपिक है, इसका मतलब यूनिफॉर्म अरेंजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हमें लेना है। अब कैसे कैसे का जवाब मिल गया इस कांस्टेंट टर्म चार्ज डेंसिटी से, और वो भी अरेंजमेंट के यहाँ पर कितने 3 टाइप्स हैं। अब 3 टाइप्स रेस्पेक्टिवली, पहली यही, अगर बेटा जी क्लियर है चार्जेस को हम एक लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लाइक दिस ए क्यू। अब जो भी है लेंथ इसकी एल है, ओके, नो डाउट दिस लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी नोटेशन लैम्डा क्यू डिवाइड बाय एल। लाइन के अलोंग है, लेंथ के अलोंग है, तो कितना चार्ज लेंथ पर है, कितना चार्ज पर यूनिट लेंथ है। सो दैट इज नथिंग, दैट इज अरेंजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अलोंग ए पर्टिकुलर लाइन पर यूनिट इट्स length, that is charge divided by length. If we are taking a small portion, say this one, say here charge is dq and length is dl. Okay, no doubt, because you see it is a constant one, so it will be the same. Then that will be a small charge, a small length. So that is nothing, that is to be clear, this density notation charge divided by length. And no doubt you see somewhere we will be need the charge in terms of the same, so we can use it like this. If you see, I would like to simplify q,
then that will be lambda. If small dq, then that will be lambda into dl. I'm repeating this last one step. See this one. One thing itself term clear. Second thing, if I'm in need of the simplification of charge, say dq. So no, that will be in terms of the density as lambda into dl. And I am just telling to you now, this will be used in the certain situations. For a small one, dq lambda dl, and you place it for q, that can be lambda into l. Alright, now come to the next one. Now see area. If I am taking any plane body, okay, that is any plane body, and say charges upon it as q. Whatever its area, say that is capital A. So in the similar manner, we can simplify this with notation sigma, that will be q. If I am taking small, it will be dq divided by area, that is dA. And here also, okay, if that basic is clear, no problem. Here along length, here along a seat, plain one, thin one, okay, where area is to be used only. Then similarly, if let's see, notation is this, charge divided by area. If I am taking a small one, see this one dq, area dA, but as the same constant term, so that will be dq divided by dA. And here also like that, because somewhere dq can be used, and I am saying here to you, in order you see, similar to the same, this small charge in terms of density, that is to be used in certain situations. So that will be dq, that is sigma into dA. And now no problem. If you have come to this third one, then it is must to take this cubical region, this three-dimensional region. Say the charges plus, that is q. And because in 3D, so we'll take its volume. And if I'm taking this small one, this small one, dq, dv. Then see, similarly you see, this charge density will be q, that is dq, that is v, that is dv. And here also again the same thing, dq, that will be rho into dv. And with the same, this first factor, distribution of charges is to be done. And if I would like to say here one thing, then that is to be clear. For that point of view, macroscopic point of view is our need, and need is to be done like this. So I can again say first one factor, distribution of charges done. Okay, now we have come to the second one. Now I have come to the second, and the second is principle of superposition, or we can say that is nothing but law of vectors addition. Second basic and important factor is principle of superposition or law of vectors addition. Resulting electrostatic force acts on a unit positive test charge will be equal to the vector sum of all electrostatic forces due to many charges. But mutual interaction between the charges
is neglected. See this one. Okay, second factor, principle of superposition और law of factors addition. देखिए, इसके मीनिंग की जब सेंस आपने क्लियर की थी वो थी रिजल्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, यानी रिजल्टिंग वेक्टर क्वांटिटी की, और रिजल्टिंग वेक्टर क्वांटिटी का बेसिक हमारे पास है कैसे, लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एंड इट इज नोन टू यू दैट इज रिजल्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acts on a unit positive test charge will be equal to the vector sum of all electrostatic forces due to many charges, but I did say there also, but mutual interaction between the same charges is to be neglected. It means there is nothing, that is F equal to F1 plus F2 plus F3 and so on, say Fn. से क्वेश्चन नंबर 1. आई थिंक ये बेसिक याद आ गया होगा, ये लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन याद आ गया आपका, ये रिजल्टिंग वेक्टर को, यानी ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्लियर, ये क्या है कि जितने भी वेक्टर्स हैं उन सब के वेक्टर सम के, लेकिन यहाँ खास बात क्या है कि उन चार्जेस के बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है वो नहीं लेंगे, दैट इज टू बी नेग्लेक्टेड वन, खत्म, नेग्लेक्टेड. ओके, विद द सेम I would like to say this second factor is to be done. Explanation. देखो बेटा, I am taking here this one is unit positive test charge Q naught. अब इस पर हमें मेनी चार्जेस से फोर्स ऐड करा दिए क्योंकि रिजल्टिंग एक्सप्लेन करना है. मैंने में कितने लिए, 2 3, कम से कम 2 नीड है हमारी. ओके, तो नीड है हमारी तो हमने 2 ले लिए, ये ले लिया हमने Q1 और ये ले लिया हमने Q2. अब हम दोनों पॉजिटिव भी ले सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी ले सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी ले सकते हैं. तो चलिए हमने एक जनरलाइज्ड मैनर यूज किया है और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लिया. ओके, सी पोजिशन बिटवीन दिस एंड दैट इज R1, position this and that is R2. So I am taking this such arrangement, and here our point of view is this, that these two charges are acting two electrostatic force upon the same one. So what will be the resulting force due to the same two forces? All right, कैसे, ध्यान दो. Let electrostatic force Q2 plus Q1 on plus Q0 is F1, and Q2 minus Q2 on plus Q0 is F2, and therefore resulting electrostatic force will be explained due to principle of superposition, that is F is nothing F1 plus F2. ध्यान दो, तो जो हमारी प्रॉब्लम है उसके लिए अरेंजमेंट हमने बेटा ये लिया है, और बड़ी क्लियर सी बात है कि लेट ये वाला चार्ज Q1 इस Q0 पे F1 फोर्स एक्ट कर रहा है और ये वाला माइनस Q2 इसी पे F2 कर रहा है, तो फोर्सेस कितनी, 2 होगी, मैनी होगी, तो रिजल्टिंग बन गई. और कैसे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. डन. अब देखिए बड़ी सीधी सी बात है, कॉमनली आपने प्रिंसिपल को लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन को यूज कर लिया, बट मैंने एक बात बताई थी कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन मस्ट, हमेशा के लिए दिमाग में रखो, और वेक्टर डायरेक्शन इज मस्ट फर्स्ट. बिना डायरेक्शन बात करना, फर्स्ट डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन होगी तो वेक्टर क्वांटिटी का एक्सप्लेनेशन करेक्ट होगा. यानी कॉमनली लॉ आपके सामने आ गया, प्रिंसिपल आ गया, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी डायरेक्शंस यूज करके. अब कैसे डायरेक्शन यूज करके बढ़ेगी, सी देखो बेटा,
F1 इस चार्ज की इसके ऊपर फोर्स है और ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स F1 की डायरेक्शन क्या होगी 100% ड्यू टू रिपल्सन आउटवर्ड होगी। तो ये लो F1 की डायरेक्शन आउटवर्ड आपने मेंटेन कर ली। अब आइए F2 किसकी इसकी है इसके ऊपर, ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब F2 की डायरेक्शन इसकी तरफ होगी यानी इनवर्ड होगी। तो F2 लाइक दैट इनवर्ड होगा। और देखो ये दो फोर्सेस कैसे हैं, जैसे दो वेक्टर क्वांटिटीज किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग हो, और जब दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स के अलोंग हैं देन रिजल्टिंग विल बी ड्यू टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब यही पकड़ो मेरी बात को, हमने कहा था डायरेक्शन जो है मस्ट है, महसूस करो इसको, क्योंकि देखिए वेक्टर्स एडिशन के लो एक नहीं है तीन है, दो वेक्टर्स के लिए ट्रायंगल हो गया, दो ही के लिए पैरेललोग्राम लो गया, दो एंड मोर देन टू के लिए पॉलीगन लो। अब सवाल ये उठता है कि ये तो कॉमनली आपने लो लिख दिया, अब लो कौन सा है? चलिए दो वेक्टर्स हैं तो इसका ट्रायंगल भी हो सकता है पैरेललोग्राम भी हो सकता है, तो विच वन इज मोर सुटेबल, यानी लोज हमारे तीन, सुटेबल कौन सा है इस कॉमन एक्सप्रेशन से पता नहीं चला, लेकिन जब आपने डायरेक्शन स्टडी कर ली तो आपको पता चल गया कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। और यहां हम एक बात ऐड करेंगे, हमेशा के लिए दिमाग में रखना कि दो ही नहीं दो से ज्यादा भी हो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जिंदाबाद। पहले दो से रिजल्टिंग निकालो, अब तीसरा आ रहा है, उस रिजल्टिंग को तीसरे के साथ डील करो एंड सो ऑन, फाइनल वन विल बी योर रिजल्ट आंसर। कीप इट। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा जी, डायरेक्शंस ने क्लियर कर दिया कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मींस पैरेललोग्राम ये आ गया, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के लिए ज्योमेट्रिकली पैरेललोग्राम मेंटेन कर लिया, फ्रॉम द सेम ये क्लियर है कि ये है ओरिजिनेटिंग एंड F1 प्लस F2। जनरलाइज्ड एस्पेक्ट मैं आपको दे रहा हूं कि वेक्टर क्वांटिटी को लेके एक्सप्लेन करने के आगे बढ़ने के तरीके दो हैं, या तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग ले लो या दोनों को एक साथ का मतलब बाय वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, मर्जी है। चलिए यहाँ पर हम दोनों को एक साथ यानी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लेके बढ़ेंगे। ओके देखो बेटा जी, ऑलराइट, दिस F1 दोनों के बीच की फोर्स है, यू नो द रिलेशन ऑफ फोर्स in terms of vector divided by r cube mod vector r. Okay, see here q1 q2 q0, so that is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q0 divided by distance r1 cube mod vector r1. Okay, then F2, alright, 1 by 4 pi epsilon naught q2 q0 divided by r2 cube mod vector r2। अब पकड़िए, एक छोटी सी बात है कि जब आप यहां आए सी Q2 नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव आपने नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव का इफेक्ट डायरेक्शन में आ गया। और एक बात को एक ही बार यूज करेंगे। हाँ, स्केलर क्वांटिटी होती है तो नेगेटिव लिखते हैं। ओके, हमेशा के लिए ध्यान रखना कि नेगेटिव का कोई भी चक्कर वेक्टर इन्वॉल्वमेंट में नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव का इफेक्ट डायरेक्शन में आ जाता है, इसलिए इसको आप अवॉइड करेंगे। ओके, नेगेटिव का कोई भी इन्वॉल्वमेंट वेक्टर के एक्सप्लेनेशन में नहीं होगा। ओके, चलिए जी, we can have this equation as equation number 1. Now moreover you see, if we have to take this arrangement, see this one here only, if we have to take this arrangement with respect to a fixed point, and this is O, then position respectively of each will be, say here, small r1 of this, say small r0 of this, say small r2। और कि अगर अरेंजमेंट को हम किसी फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट लें, कैसे? लाइक दिस,
नो डाउट तीनों चार्जेज आपके इस फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट आ गए, पर कैसे? इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर r1, r0, r2 रेस्पेक्टिवली। एंड सी मोर ओवर हम एक्सप्लेनेशन यही करेंगे, यानी मोर ओवर जो एक्सप्लेनेशन किया है आपने इसको बढ़ाएंगे, बट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। दिस वन मोर ओवर द सेम कैन बी explained in terms of position vectors r0, r1 and r2। ओके, चलिए जी फिर पॉइंट पर आ गए हम कि मोर ओवर इसी एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स दिस एंड दैट। कैसे? सिंपल, वही मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन चल रहा, हमने बताया आपको। तो क्या करते हो? मैथमेटिकल अप्रोच क्या है? यानी फिर सुन लीजिए, ये जनरलाइजेशन दे चुका हूँ। अगर एक्सप्लेनेशन आपको मैथमेटिकल बेस के साथ करना है या बढ़ाना है तो नो डाउट कैसे उसे आप मैथमेटिकली एनालाइज करोगे, बस आपको पता चल जाएगा कैसे आगे बढ़ेगा। ये जनरलाइज्ड लॉजिक मैं आपको दे चुका हूं। ऑलराइट, ध्यान दीजिए, मैथमेटिकली एनालाइज कर रहे हैं, बस उससे 100% हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे आगे बढ़ेंगे। ओके, कांस्टेंट, स्केलर, वेक्टर, इसका मतलब क्या है कि इस वेक्टर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कांस्टेंट, स्केलर, वेक्टर, इसका मतलब इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका मैथमेटिकली हमें ये कंफर्मेशन हो गई कि पोजीशन वेक्टर्स को हम इन दोनों r1 एंड r2 की फॉर्म में यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट वी नो। ओके, सी दिस triangle, just I would like to write here यानी ये हमें पता चल गया कैसे हुई, यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा। बेसिक है, फिर भी कैसे? ओके, इस ट्रायंगल में घुस जाओ। ऑलराइट, इन द सेम, नो डाउट, आई एम राइटिंग हियर, वेयर, चेक इट, r1 is nothing but r0 minus r1. Will be correct? Simple one. 3 vectors. These 2 vectors tail to tail. अगर दो हमारी tail to tail हैं तो head to head उन दोनों का सबट्रैक्शन होगा। वो भी कैसे? कि उस रिजल्टिंग का हेड कौन साइड किससे कर रहा है, टेल किससे कर रही है, हेड किससे कर रहा है, उससे सबट्रैक्ट करेंगे, टेल किससे कर रही है उसको करेंगे। इट मींस r1 becomes r0 minus r1, सिमिलरली r2 बन जाएंगे। फिर ये दो हो गए आपके टेल टू टेल, इसका मतलब r2 क्या होगा, नो डाउट दैट विल बी r0 minus r2। ये लॉजिक, कैपिटल r2 भी सिंपलीफाई होगा, r2 becomes equal to r0 minus r2। बस ये हमारा काम हो गया कि इसको हमने मॉडिफाई कर लिया, यानी r1 r2 हमारी नीड थी, तो r1 ठीक, r2 को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, सॉरी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स हमने मॉडिफाई कर लिया। बस अब मॉडिफाई पोजीशन वेक्टर्स की टर्म्स में कैसे क्या है, पर उसी उन्हीं रेस्पेक्टिव टर्म को, उन्हीं टर्म्स को हम प्रोवाइड कर देंगे एंड वी कैन हैव द एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। सी ये आ गया जी आपका, दिस इज नथिंग, दिस इज 1/4 pi epsilon naught q1 q0 r1, this one r0 minus r1 divided by q mod, this is r0 minus r1 q mod। okay, plus here again next line 1/4 pi epsilon naught q2 q0 r2 this r0 minus r2
डिवाइड बाई यस आर नॉट माइनस आर टू क्यूब मोड। ओके जी, यानी ये समझ लीजिए कि आपने इस एक्सप्लेनेशन को इन टर्म्स ऑफ द सेम पोजीशन वेक्टर्स एक्सप्लेन कर लिया, यानी कि इस रिजल्टिंग फोर्स का पोजीशन वेक्टर्स की टर्म्स में एक्सप्लेनेशन आ गया। अब आगे बस एक बात बची है यहाँ पर, ये टू चार्जेस हमने लिए, अगर हम तीसरा लेते कोई दिक्कत नहीं, देखिए ये सेम रहता, क्यू नोट सेम रहता, यहाँ Q1 है, Q2 है, Q3 आ जाता, इसके बाद आर नोट सेम रहता, आर नोट सेम रहता, यहाँ R1 है, R2 है, R3 आ जाता, नीचे आर नोट सेम रहता, R1 राइट, R2 R3 आ जाता एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है कि दिस बेस कैन बी जनरलाइज्ड फॉर n चार्जेस। ओके, वी कैन राइट इट। Correct. And then for capital N charges we have the same explanation, Q naught divided by 4 pi epsilon naught. Q naught can be taken common. Okay, bracket. This is Q R naught minus R1, R naught minus R1, sorry, R1 cube mod plus Q2 R naught minus R2 divided by R naught minus R2 cube mod plus Q3 R naught minus R3 divided by R naught minus R3 cube mod. That's so. And say this one is N1 Q1 R naught minus Rn divided by R naught minus Rn cube mod. Okay. So for n charges we can have the same like this, and not how we can simplify this also. This F, that is Q naught divided by 4 pi epsilon naught. Algebraic language sigma I am using here. Alright. Okay. This is Qi, Q1, Q2, Q3 and so on. It means this charge is having variation. That is varying. So variation in charge is to be taken by I. Then R naught minus Ri. R naught fixed, but R1, R2, R3, and in position variation Ri divided by similarly R naught minus Ri cube mod. I touch to 1 to capital M. Here, the final result is this. That explanation. Electrostatic force, resulting force due to many charges given two basic factors is to be completed. But one thing I am going to tell you here, see this, that arrangement is not to be taken in any plane. Plane may be one dimensional, two dimensional, three dimensional, then no problem. Again see, analyze mathematically. So you will find only you have to modify position. Scalar, constant, no problem. यानी अगर अरेंजमेंट किसी प्लेन में है तो हम पोजीशन को प्लेन के हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे। वन डायमेंशनल है तो ये पोजीशन मेरी एक्स होगी या वाई होगी या आपकी जेड होगी। टू डायमेंशनल है तो नो डाउट इन टर्म्स ऑफ टू कंपोनेंट्स होगी। एक्स वाई है तो एक्स वाई कंपोनेंट्स होंगे, वाई जेड है तो वाई जेड कंपोनेंट्स होंगे, एक्स जेड है तो एक्स जेड कंपोनेंट्स होंगे, और थ्री डायमेंशनल प्लेन अगर है तो थ्री कंपोनेंट्स होंगे। यानी कि यही पोजीशन आपकी एक्स वाई जेड थ्री कंपोनेंट्स की टर्म्स में होंगे इन थ्री डायमेंशनल प्लेन।
And see, why I am repeating this one? You see, it will be required in certain situations. So with the same, I can again say topic is to be completed, but upon the same topic, one numerical will discussed here. See this one. Okay, topic is done, but upon the same, I'm going to discuss one interesting, important numerical. Okay, see this numerical. 3 charges plus q minus q are kept at 3 vertices ABC of an equilateral triangle as in figure. What will be the resulting electrostatic force at point A, B and C? So that is equilateral triangle. Upon its all 3 vertices respectively charged plus q minus q are kept. Now what is resulting electrostatic force at this charge which is kept at point A? At this respectively. Here you see, or I would like to say, way is known to solve a numerical problem. Okay, given as in figure, सब कुछ फिगर में क्लियर है. प्रॉब्लम ए पे मुझे रिजल्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एफ ए फाइंड आउट करनी है. बी पे मुझे रिजल्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ बी फाइंड आउट करनी है. और सी पे सी पे मुझे रिजल्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ सी फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो गिवन फिगर में प्रॉब्लम्स आपने क्वेश्चन मार्क कर दी. एक, दूसरी आपकी ये है एंड तीसरी आपकी ये है. अब प्रॉपर वे एंड प्रॉपर वे नॉट टू यू, ये डायरेक्ट भी हो सकता है. इसके लिए हमें इनडायरेक्ट एज वेल एज बेसिक अप्रोच को भी यूज करना पड़ सकता है. बट हियर डायरेक्ट वन, प्रिंसिपल लो. सो आई हैव कम फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ए. प्रिंसिपल बिल्कुल थ्योरी में जो एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है, बिल्कुल हम वैसे ही इसको कवर अप करेंगे. बट यू प्लीज सी, इसके लिए लगभग 5 to 10 मिनट्स आर रिक्वायर्ड. इसलिए आप इसको रीड करोगे, ठीक है, अंडरस्टैंड करोगे और देन इसका सॉल्यूशन कंप्लीट करोगे. और फिर वही बात, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप उसे लिखोगे. ओके, जस्ट आई कंटिन्यू. एफ ए, लेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लस क्यू which one is at A due to plus Q which one is at B is equal to F1, and let electrostatic force on plus Q which one is at A due to minus Q which one is at C is F2. Then resulting electrostatic force will be Fe, and that is F1 plus F2. Okay, बिल्कुल जैसे थ्योरी, नो डाउट, वैसे ही सॉल्यूशन, बिकॉज कंसेप्ट रिमेन्स द सेम. No problem. दूसरा आप डायरेक्शन स्टडी करो. सी F1 ये पॉजिटिव पर फोर्स एक्ट कर रहा है, डायरेक्शन ये रही आउटवर्ड. F2 ये नेगेटिव कर रहा है. ओके, तो नो डाउट ये रही आपकी F2 इनवर्ड. क्या लिया? 2 forces, 2 adjacent sides parallelogram. It means law of parallelogram जिंदाबाद. सी तो लो पैरेललोग्राम का मतलब पैरेललोग्राम इज हियर and that is resulting force Fe. Okay, see this one. Okay, बढ़ते ही जाएंगे. अब अगली बात क्या है? आगे ही लो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, और हमने बताया था तरीके दो हैं. दो कौन से है? तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग है.
ये हम दोनों को एक साथ यानी बाई वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ले, लेकिन न्यूमेरिकली आई डिड से कि हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग लेंगे। आई एम रिपीटिंग दिस, न्यूमेरिकली आई डिड से मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस अलग अलग होंगी। ओके, डायरेक्शंस यही आपकी मैग्नीट्यूड बचा। मैग्नीट्यूड के लिए लो पैरेललोग्राम का स्टैंडर्ड रिलेशन यूज करेंगे। सी दिस वन, एफ ए मोड एंड दैट इज f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos theta square root. Okay, where think about f1 value स्क्वायर हो गया f2 स्क्वायर। ओके, स्क्वायर वैल्यू मैग्नीट्यूड यू नो। ओके, फिर आ गई f1 यानी इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कूलम्ब्स लॉ का मैग्नीट्यूड का रिलेशन आएगी। मैग्नीट्यूड आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज q1 q2 divided by r square is nothing 1/4 pi epsilon naught. And see this one, numerically I did say to you, generally you will write 1/4 pi epsilon naught by k, q divided by l square, r is l, capital L. So that is nothing, this is kq square divided by l square, capital L square. f2 the same, q square, we can see here q l square, q but नेगेटिव नो, उसका यूटिलाइजेशन डायरेक्शन में हो गया एंड दैट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल एल स्क्वायर। ओके, इसका मतलब यू सी फ्रॉम द सेम इट इज लुकिंग f1 say that is equal to f2 say that is equal to f, value same, kq square divided by l square, kq square divided by l square same. इसका मतलब we can simplify the same one, f a mod is nothing but this is f square 2 f cos theta. Theta क्या है? Angle between both, and between both when it is equilateral you are familiar, every angle is 60 degree. 60 degree. So what one will be this? That becomes 120 degree. So theta is nothing but that is 120 degree. Okay, simplify more, f square into f square and this is 2f square and cos 120 is nothing, minus 1 by 2, 2 cancel square root and that is nothing, 2f square minus f square, that is f square and that is nothing, f, and that one is k q square divided by capital L square. Hello, बड़ी है बात, I will say to you, स्टेप वाइज कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ओके, सिंप्लीफाई करते जाओ, फाइनल स्टेप पर कैलकुलेशन होगी, फाइनल स्टेप कैलकुलेशन देगा, सिंपल। तो रिजल्टिंग फोर्स डायरेक्शन इन फिगर, मैग्नीट्यूड इन फ्रंट ऑफ यू यानी दिस वेक्टर क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डन। सिमिलरली you have come to this AB here. No problem. Let electrostatic force on plus Q into plus Q is F3 and let electrostatic force on plus Q due to minus Q F4, then resulting will be as F3 plus F4. See the same, similar to the same.
हमारे पास जनरलाइज्ड कंसेप्ट है डायरेक्शंस ओके F3 इन दोनों पॉजिटिव के बीच में ओके डायरेक्शन विल बी F3 F4 नेगेटिव पॉजिटिव यानी डायरेक्शन F4 but you see indicates that these two again by the two adjacent means we can say because similarly going on so that's why you see next whatsoever is left same means two forces two adjacent sides of parallelogram so low parallelogram that is resulting FB out अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे वैसे ही करेंगे डायरेक्शन यहाँ है मैग्नीट्यूड के लिए स्टैंडर्ड रिलेशन एंड रिलेशन एज पर लो इज नथिंग सिमिलरली सेम बेसिकली I'm writing here directly 120 degree so 60 here it means 120 okay square root where ये भी सेम है F3 F4 is nothing but that is K Q square divided by L square you can check Q square L square you can check Q square negative will not come divided by capital L square okay see this one is F dash so relation becomes F dash square and that is 2 F dash minus 1 by 2 square root 2 cancel this is F dash square minus F dash square means 2 F dash square minus F dash square means nothing but F dash square and F dash square means F dash and that is nothing but K Q square divided by capital L square purely FB mode done FB similarly because similar situation similar results now similarly at C we can or we will do but this part I am given to you people yani iske sath I am going to close here only next will be in the next class with the same I would like to say subscribe and like this video also thank you